Replacing a function with polynomial, you can integrate. And by taking 1-degree polynomial, we derived this rule. This is called Simpson rule. And error term contain h cube by 12 f second derivative at some point c. So if you apply this rule on, let us say, on constant function, or you apply this rule on 1-degree polynomial, then as second derivative of constant and 1-degree polynomial is 0, so there will be no error. So this means this rule provide exact results for polynomials अप टू डिग्री 1, यानी कि कांस्टेंट को भी आप लिख सकते हो x पावर 0, जैसे ये 2 है तो आप लिख सकते हो 2x पावर 0. So if you apply this trapezoidal rule on constant or on first degree polynomial, any polynomial, let us say 2x plus 3, so as second derivative of any 1-degree polynomial is 0, so you got error 0. Next rule in this direction is we take n equal to 2. So we replace fx with second degree polynomial. Fx with second degree polynomial. तो सेकंड डिग्री कैसे बनेगा? 3 पॉइंट चाहिए. You are integrating from a to b. So a is fixed. पहला पॉइंट फिक्स है, लास्ट वाला भी फिक्स है, which is b. Equally space पॉइंट लेने हैं, so take x1 as middle point. Okay, so middle point दोनों से equal distance पे होगा, so you can take middle point of a and b, x1. So here gap between 2 point will be b minus a by 2. अब गैप किसको बोल रहे हो? दोनों के बीच का गैप. So this is x0, this is x1, this is x2, so this is h. ये भी h है, ये भी h है. So we are taking equally spaced point. So this is second Newton-Cotes formula. So what we do, so you are integrating fx from a to b. a कहो चाहे x0 कहो, b कहो चाहे x2 को, both are same thing. Equal to polynomial second degree plus error. Error को भी मैं e लिख के छोड़ रहा हूँ. I will simplify after that. So firstly I will simplify polynomial, then error term. So second degree Lagrange polynomial based on 3 point, that will be L0x fx0, second degree Lagrange L1x fx1 plus L2x fx2. ठीक है, तो अब fx0 को आप बाहर लिख सकते हो. इंटीग्रल किसका आ जाएगा? L0 का. Similarly, you can write fx1 fixed है, इंटीग्रल will be of L1. यहाँ से L1 के अंदर x है, x0 से लेके x2 तक. Then fx2 x0 से लेके x2 L2. तो अब ये दो फैक्टर होंगे, तो सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं इनको, क्योंकि थोड़ा स्पेस की कमी रहेगी. तो मैं इनको नोटेशन देके लिख रहा हूँ एक बार. जैसे लैम्डा 0, आप कुछ भी लिख लो, आप चाहे नाम भी लिखो, अलग अलग सिंप्लीफाई कर लेंगे. देन वी विल सब्स्टिट्यूट हियर. चलो कुछ नहीं लिखते, सिंप्लीफाई करते हैं बस. So now I simplify these all integrals. So first one is
इंटीग्रल ऑफ L0. So what will be L0? दो पॉइंट से ऊपर x माइनस x1, x माइनस x2, जीरो नहीं आएगा और जीरो में से दोनों पॉइंट माइनस, L0 x1 x2 पे जीरो बनेगा और L0 x0 पे 1 बनेगा। ठीक है, अब इस इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करना है। तो जो हमने इंटरपोलेशन में पहले भी हमने यूज किया था, यू कैन सब्स्टिट्यूट टू सिंप्लीफाई x इक्वल टू x, यानी कि ये फैक्टर आ रहा है x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, तो किसी एक को फिट कर लो, या तो आप फिट कर लो x माइनस x0 को h टाइम्स t, किसी को, चाहे x माइनस x1 को फिट कर लो, चाहे x माइनस x2 को, to simplify the integral that I am going to do on next page. So we substitute in x minus x0 या x equal to x0 plus ht फिट कर लो। So dx क्या बन जाएगा, h dt। Also change the limits, लिमिट है x0 से लेके x2 तक। So when x equal to x0, तो x0 equal to x0 plus ht, so this will give you t equal to 0, इंटीग्रल का लिमिट। When x equal to x2, so x2 अब लेफ्ट में ले जाओ, x2 माइनस x0, ये 2h बन जाएगा, 2h इक्वल टू ht, सो दिस इंप्लाइज t इक्वल टू 2। ये लिमिट्स x0 से लेके x2 तक, तो t वेरिएबल में लिमिट्स होगा 0 to 2। ठीक है, बार बार लिखने की बजाय इसको लिख ही लेते हैं, जस्ट राइट लैम्डा 0, एक दो बार लिखना पड़ेगा ना, लैम्डा 0 दिस। व्हाट इज लैम्डा 0? इंटीग्रल ऑफ L0। चाहे आप ऊपर लिख के छोड़ दो इसको, एक लाइन को, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं। सो इंटीग्रल लिख देते हैं x0 से लेके x2, L0 x, तो ऊपर वैल्यू फिट कर दो। ऊपर आ रहा है x माइनस x1, x माइनस x1, तो x इज x0 प्लस ht। अब x1 को भी लिख दो x0 प्लस h। सिमिलरली x माइनस x2, x2 इज x0 प्लस 2h, दो का गैप है। और नीचे जो फैक्टर आ रहे हैं p वेरिएबल में 0 से लेके 2 तक, नीचे फैक्टर आ रहा है x0 माइनस x1, that will be minus h, x0 minus x2, this will be minus 2h, so everything will be cancel out, x0 will be cancel out, h कॉमन आ जाएगा, तो h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 0 to 2 t minus 1 t minus 2 dt, ऊपर बचेगा t minus 1, सेकंड से t minus 2 एंड माइनस माइनस प्लस 1/2। अच्छा हाँ, और डोंट फॉरगेट टू चेंज dx, dx इज h dt, ओके, सो मल्टीप्लाई हियर, dx इज h dt, तो एक h बाहर आ जाएगा h। अब इसका इंटीग्रल कर लो, अब t में सिंप्लीफाई हो गया, जस्ट t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 बन जाएगा, इंटीग्रेट इट, आंसर इज h/3। सेम मैनर में आपने करना है इंटीग्रल ऑफ L1। पहले L1 का वैल्यू फिट कर लो, L1 इज x माइनस x0, दूसरा पॉइंट x माइनस x2, नीचे x1 में से दोनों पॉइंट माइनस,
ओके, सो चेंज ऊपर जो हमने लिखा है सेम चेंज करना है आपने। टी वेरिएबल में 0 to 2, ऊपर x माइनस एक्स जीरो ये बन जाएगा आपका एच टी, x minus x2 this will be h t minus 2, dx will be h dt, नीचे x1 minus x0 will be h, x1 minus x2 will be minus h, x2 minus x1 is h, so this will be minus h. So same way में h will cancel out, -1 रहेगा तो t, so integrate t square minus 2t, ठीक है, आंसर लिख रहा हूँ 4h/3 एंड लास्ट वन आप सीधा इंटीग्रल कर सकते हो, यू कैन इंटीग्रेट in t variable. This will simplify your calculation, nothing else. To simplify the calculation we substituted. So what will be L2? X minus x0, x minus x1 और नीचे x2 में दोनों पॉइंट माइनस, x2 minus x0, x2 minus x1 dx. In the same fashion, x minus x0 will be h times t, x minus x1 this will be h t minus 1, नीचे x2 minus x0 will be 2h, x2 minus x1 will be h and dx will be h dt. इसको सिंप्लीफाई कर लेना, h/3 आ जाएगा। फर्स्ट और लास्ट सेम आ रहे हैं, तो अब इंटीग्रल में जाइए यहाँ पे, सो इसको नंबर लगा लो चाहे। सो fx0 इंटीग्रल ऑफ L0 plus fx1 integral of L1 plus fx2 integral of L2. So substitute those values here in one में फिट कर दो h/3, मिडल 4h/3 और लास्ट वाला h/3। तो तीनों में h/3 फैक्टर इज कॉमन, so therefore integral of p2 is equal to h/3 is common। पहला fx0 है, you can write fx0 as fa, fx0 लिखना है fx0 लिख लो, so same thing, मिडल में 4 आएगा, 4h/3 था, 4fx1 और लास्ट में h/3, so h/3 is outside, so this is just fx2. So this is simplification of फर्स्ट से देखोगे तो इससे दिस वन p2 को सिंप्लीफाई कर लिया, इंटीग्रल ऑफ p2, अब एरर को सिंप्लीफाई करना है आपने, ठीक है। तो लास्ट में यूजुअली वी राइट द आंसर इन a and b, so fx0 which is fa, x1 is a plus b by 2 middle point and fx2 is b, so this is second. Now I simplify the error. So what will be the value of the error here? Error थोड़ा इसमें n2 है तो 1/n+1, 1/3 फैक्टोरियल n2, x0 से लेके x2 तक, fn+1 यानी कि f का थर्ड डेरिवेटिव एट पॉइंट xi या c लिखा था हमने जो भी, x minus x0, x minus x1, x minus x2 dx। अब सेम जो हमने ट्राइपोजोडल में लगाया था, सेम आर्गुमेंट वी अप्लाई हियर। सो यू हैव टू फंक्शन, वन इज दिस एंड सेकंड इज दिस। अब जाई अननोन है, ठीक है, तो इसका हम तो कुछ नहीं कर सकते इंटीग्रल, बट वी कैन इंटीग्रेट दिस टर्म। तो लास्ट टाइम वी डिस्कस ए वेटेड मीन वैल्यू थ्योरम कि दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, एक f हो एक g हो, अगर g अपना साइन चेंज ना करे तो आप f को बाहर निकाल सकते हो इंटीग्रल से। सो द सेम थ्योरम आई वांट टू अप्लाई हियर, बट यू कैन चेक दिस प्रोडक्ट
will change its sign. ये प्रोडक्ट है, तो पॉइंट आपके पास ये हैं, दिस इज माई x0, दिस इज x1, दिस इज x2। x वैरी करेगा, x कैन बी एनीवेयर। अगर x यहाँ पे है, लेट अस से x इज हियर, तो फर्स्ट फैक्टर x माइनस x0, दिस विल बी पॉजिटिव। सेकंड फैक्टर x माइनस x1, x1 बड़ा है, नेगेटिव। थर्ड फैक्टर x माइनस x2, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, so ultimately this will be positive. But on the other hand, if x is here on the other side, x can be anywhere. If x is here, then x minus x0, this will be positive. X minus x1, this will be positive. बड़ा है ना x1 से। x minus x2, अब x2 बड़ा है, this will be negative. So positive, positive, negative, so this will be negative. So this product is changing its sign. So you cannot apply mean value theorem for this function here. But हमने करना वही है, निकालना इसको बाहर है, otherwise we cannot go further. Okay, तो मैं लिख रहा हूँ रीजनिंग जो आपको बताया, since the product x minus x0, x minus x1, x minus x2 changes its sign in interval x0 to x2. Therefore, we cannot apply mean value theorem. You can say we cannot apply weighted mean value theorem as we did in trapezoidal rule. Also, आप करना चाहे चेक, जैसे हमने पहले किया था, x इक्वल टू x0 प्लस एच टी लेके इसका इंटीग्रल करना, इंटीग्रल आएगा भी जीरो। ये वैसे तो हम बाहर निकाल नहीं सकते, कोई फायदा नहीं है करने का, बट इफ यू डू दिस इंटीग्रल, दिस इज जीरो। तो अब सिचुएशन टिपिकल है कि अब यू कैन नॉट अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम नहीं लगा सकते, तो हम इंटीग्रल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसको करने के दो वे हैं, या तो इसको स्प्लिट कर लो एरर टर्म को, कि पहले इंटीग्रल यहाँ से यहाँ तक करो, फिर यहाँ से यहाँ तक करो, दो पार्ट्स में डिवाइड करो, बट देन वी यू विल गेट टू डिफरेंट जाइज, फिर उनको क्लब करना पड़ेगा। एक दूसरा ट्रिक है दैट आई एम यू, अब दूसरा ट्रिक क्या कहता है कि जस्ट आप इंटीग्रल कर रहे थे, यू आर डूइंग दिस इंटीग्रल से, सो दिस इज माय ए, या x0 कह लो इसको, x0, दिस इज माय x1, दिस इज माय x2। तो इंटीग्रल आप क्या करते हो, यू फाइंड एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो ये कहता कि अब एक पॉइंट के अंदर, अब इंटीग्रल अगर आप करते हो, अगर मैं ये करूं इंटीग्रल x1 से x1 तक करूं, तो इंटीग्रल क्या आता है, जीरो आता है। अगर इंटीग्रल की लिमिट सेम हो, सो इंटीग्रल विल बी जीरो। तो ट्रिक क्या है कि हम एक पॉइंट को डबल कर देते हैं। सो डबल कैसे कर रहे हैं, वी कैन add an interpolation point, we can add an interpolation point without affecting the area of interpolating polynomial. Without affecting area of interpolating polynomial. So एक पॉइंट को डबल करना है, so we take
पहला पॉइंट x0 ले लो, x1 को आप 2 बार ले लो, किसी एक को मिडल को ले लो। वैसे तो इंटरपोलेशन के हिसाब से तो आप नहीं ले सकते, बट एरिया के हिसाब से, जैसे कि मैं इंटीग्रल कर रहा हूँ x0 से लेके x1 तक, फिर x1 से लेके x1 तक कर रहा हूँ, और फिर x1 से लेके x2 तक, तो दिस विल बी 0। तो आपका इंटीग्रल तो वही रहा x0 से लेके x2 तक। सो आई एम नॉट चेंजिंग द इंटीग्रल, जस्ट आई एम एडिंग वन एक्स्ट्रा पॉइंट एंड x2। तो पहला पॉइंट a है, x1 a plus b by 2 है, और x2 आपका b है। सो we take points x0, x1, x1, x2 etc। तो अब क्या बन जाएगा, अब थ्योरेटिकल सेंस में हो गया, आपके पास 4 पॉइंट हैं, तो 4 से 3 डिग्री पॉलिनोमियल बनेगा। सो n विल बी 3। सो 1 by n plus 1 फैक्टोरियल, यानी कि 1 by 4 फैक्टोरियल, x0 से लेके x2 तक। सेम पहले वाला ही है इंटीग्रल, जस्ट सेम लिखा है, एक बढ़ा दो इसमें n को, तो 1 by 3 की जगह 4 आ जाएगा, और मिडल वाला पॉइंट स्क्वायर बन जाएगा। सो नाउ यू हैव x0 minus x minus x0। इंटीग्रल में आप ये कर सकते हो, इंटरपोलेशन में आप प्रैक्टिकली नहीं कर सकते। अब इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि बीच वाला टर्म जो है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर है। तो अगर मैं सेम सिचुएशन देखूं जो पीछे लिखा था, अगर x इस साइड है, ठीक है, तो x माइनस x0 ये नेगेटिव रहेगा, दूसरा पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। और अगर उल्टा है, इस वाली साइड है, तो भी ये x0 से तो बड़ा ही है, चाहे x यहाँ पे हो, x minus x0 will be positive, this will be negative। So in both cases this will be negative, क्योंकि बीच वाला फैक्टर तो साइन चेंज नहीं कर रहा। आप x कहीं भी ले लो, कहीं भी लो आप x0 smallest है, so x minus x0 this will be positive, and x minus x2 will be negative, so ultimately this will be negative। So you can apply mean value theorem। तो अब सेम रीजनिंग है। नाउ द प्रोडक्ट x minus x0, x minus x1 square, x minus x2 does not change its sign in x0 to x2, it will remain negative। So therefore by weighted mean value theorem for integral, there exists a point C in x0 to x2, so you can take this outside। ये अपना साइन चेंज नहीं कर रहा, तो दूसरे को आप बाहर निकाल सकते हो, दैट इज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, जो साइन चेंज नहीं कर रहा, बाहर दूसरा निकलेगा। सो यू कैन टेक दिस आउटसाइड। जाई सी सिंबॉलिक है, अब सेम नहीं रख रहे हम कहते हैं कि कोई अननोन पॉइंट होगा, दैट कैन बी एनीथिंग। ये जाई लिखा है मैंने, जाई ऐसे लिखते हैं, उल्टा ई सा लिखते हैं, अभी ठीक बनाए अगजाई। तो यहाँ पे सी डाल के इसको बाहर लिख दो, सिंप्लीफाई कर लो इंटीग्रल को। इंटीग्रल आप खुद करना, मैं इसको नहीं कर रहा इंटीग्रल को। 1 by 4 फैक्टोरियल 24 होगा, f फोर्थ डेरिवेटिव एट c, x0 से लेके x2 तक, x माइनस x0 सेम फिट करना, ये बन जाएगा एच टी, नीचे मिडल वाला बन जाएगा एच टी माइनस 1, इसका स्क्वायर था ना,
और x माइनस x2 विल बी h t माइनस 2, dx विल बी h dt, फिट किया हमने x इक्वल टू x0 प्लस एच टी जो पहले किया था। ठीक है, h कॉमन आ जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करना पूरे को एंड इंटीग्रल करना। मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं, बचा तो यही है ना, t माइनस 1 स्क्वेयर t माइनस 2, और लिमिट्स t वेरिएबल में दिस विल बी 0 टू 2, 0 टू 2, इसका इंटीग्रल करना है आपने 0 टू 2 तक। h तो बाहर आ जाएगा, h 1 2 3 5 h होंगे बाहर, 5। सिंपल है इंटीग्रल करना, जस्ट पॉलिनोमियल है। फाइनल आंसर जो इसका आएगा h5/90, f का फोर्थ डेरिवेटिव एट पॉइंट c। सो फाइनली जो इंटीग्रल का वैल्यू है a टू b, दैट इज h/3 जो पहले लिखा था हमने, एफ ए 4 फंक्शन वैल्यू एट मिडल पॉइंट प्लस एफ बी एरर टर्म h5/90 एफ फोर्थ एट c, और c क्या है, a और b के बीच में कोई भी अननोन पॉइंट है। सो दिस रूल, दिस इज कॉल्ड सिम्पसन, सिम्पसन बंदे का नाम है मैथमेटिशियन का, कर्व नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड सिम्पसन 1/3 रूल। 1/3 h/3 के लिए है ये, इसको 1/3 फैक्टर आ रहा है, इसको 1/3 रूल भी बोलते हैं। अगला रूल भी है n इक्वल टू 3, दैट वी वांट स्टडी, n इक्वल टू 3 भी है, उसको भी सिम्पसन रूल बोलते हैं। उसमें 3/8 आता है, 3h/8 आउटसाइड, उसको 3/8 रूल बोलते हैं। वो एक पॉइंट और बढ़ा दो, ठीक है, 3 पॉइंट से जो बनेगा। तो एरर टर्म के अंदर, अब एरर टर्म नेगेटिव आपको लग रही है, नेगेटिव जरूरी नहीं है ये, h तो पॉजिटिव है, बट f का डेरिवेटिव दैट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, इस पे डिपेंड करेगा। अगर f का फोर्थ डेरिवेटिव नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव रहेगा। सो दैट डिपेंड ऑन f फोर्थ डेरिवेटिव। सो इफ यू अप्लाई दिस रूल ऑन ए पॉलिनोमियल, फिर मैं, ये इंपॉर्टेंट रिमार्क है, क्विज वगैरह में भी पूछते हैं, अगर आप इस रूल को लगाओगे पॉलिनोमियल पे, पॉलिनोमियल हम किस फॉर्म में लिखते हैं, कांस्टेंट को भी पॉलिनोमियल कहते हैं, x⁻0, या x पे लगाओ, x⁻1 पे लगाओ, x⁻2 पे, f का फोर्थ डेरिवेटिव है, इवन आप x³ पे भी लगाओ, तो कांस्टेंट का फर्स्ट फोर्थ डेरिवेटिव क्या होगा, 0। 1 डिग्री पॉलिनोमियल कैसा भी हो, से 3x + 2 हो, कुछ भी हो, फोर्थ डेरिवेटिव विल बी 0। 2 डिग्री पॉलिनोमियल हो, फोर्थ डेरिवेटिव विल बी 0। 3 डिग्री पॉलिनोमियल हो, फोर्थ डेरिवेटिव विल बी 0। So if you apply this rule on a polynomial up to degree 3, there will be no error. तो क्वेश्चन क्या पूछते हैं क्विज वगैरह में शॉर्ट में, कि सिम्पसन रूल प्रोवाइड एग्जैक्ट रिजल्ट्स फॉर पॉलिनोमियल, और ये भी इंपॉर्टेंट है पॉलिनोमियल पे, और नहीं कोई एक्सपोनेंशियल हो तो वो वैनिश नहीं होते कभी ना, सिर्फ पॉलिनोमियल ही होते हैं जो डेरिवेटिव करने पे 0 बनते हैं, और कोई फंक्शन नहीं बनता। अब साइन को डिफरेंशिएट कर लो, क्या डेरिवेटिव आएगा, साइन कॉस चलता रहेगा। सो ओनली पॉलिनोमियल। सो इफ यू अप्लाई ऑन ए पॉलिनोमियल, तो आंसर दे देगा, ए में क्या दिया, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, तो आपका क्या लिखोगे, सो अप टू 3 डिग्री देयर विल बी नो एरर, अप टू 3 के लिए भी, 2 के लिए भी, 1 के लिए भी, और 0 कांस्टेंट के लिए भी। दिस रूल विल प्रोवाइड एग्जैक्ट रिजल्ट। और मैंने बिगिनिंग में डिस्कस किया था ट्रेपेजॉइडल रूल, ट्रेपेजॉइडल था, उसमें एरर हाँ, ट्रेपेजॉइडल में था, f का सेकंड डेरिवेटिव है, तो ये सिर्फ 1 डिग्री तक है, ठीक है।
1 डिग्री पॉलिनोमियल तक एग्जैक्ट आंसर देगा। ये 1 डिग्री तक और वो 3 डिग्री तक, क्योंकि बीच में एक बढ़ा दिया ना हमने एक टर्म, वो 1 के लिए और ये 3 के लिए। और इसी टर्म को जो मैं बोल रहा था कि कितने डिग्री पॉलिनोमियल के लिए एग्जैक्ट आंसर देता है, इसका वैसे नाम भी है इस टर्म को, मैं आगे फॉर्मल डेफिनेशन लिख रहा हूं। इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ एक्यूरेसी या डिग्री ऑफ प्रिसीजन। प्रिसाइज से बना है प्रिसीजन, डिग्री ऑफ प्रिसीजन, या इसको बोलते हैं ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ए क्वाड्रेचर मेथड, क्वाड्रेचर मेथड। डिग्री बोलते हैं, प्रिसाइज से प्रिसीजन बना है, या ऑर्डर। सो डिग्री ऑफ प्रिसीजन या डिग्री ऑफ एक्यूरेसी भी बोलते हैं। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी और प्रिसीजन is the largest positive integer, so that such that the integration formula, या rule provide exact results for polynomials x power k for each k equal to 0, 1, 2 up to n. So largest positive integer n, so that the integration formula provide exact result for polynomial। पॉलिनोमियल को अब आपने सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल लिखना है तो उसको आप एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, वैसे इनको मैथ्स में हम मोनोमियल्स बोलते हैं, मोनोमियल्स। ये सारी प्रॉपर्टी बता देगा आपको सेकंड डिग्री की, एक्स स्क्वायर। थर्ड लेना है 3 ले लो, एक्स क्यूब। तो जितने डिग्री तक एग्जैक्ट आंसर दे, दैट नंबर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। एक्स पावर के लिखा है ना, तो के 0, 1, 2 अप टू n। अगर मैं इसको कहूं सिम्पसन रूल को कि ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल तक एग्जैक्ट आंसर देगा, तो 3 के लिए देगा, 2 के लिए भी देगा, 1 के लिए भी देगा, कांस्टेंट के लिए भी देगा। तो इस नंबर को हम बोलते हैं, तो अगर आप लिखना चाहो सो ट्रेपेजॉइडल रूल 1 डिग्री तक एग्जैक्ट आंसर देता है। सो ट्रेपेजॉइडल रूल हैज डिग्री ऑफ प्रिसीजन, ऑर्डर भी बोलते हैं, और ये ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस टाइप नहीं है। ऑर्डर का मीनिंग कितने डिग्री तक एग्जैक्ट आंसर देता है पॉलिनोमियल के लिए। सो ट्रेपेजॉइडल रूल हैज डिग्री ऑफ प्रिसीजन 1, क्योंकि 1 डिग्री तक आंसर देगा एग्जैक्ट, एंड सिम्पसन रूल हैज डिग्री ऑफ प्रिसीजन 3। थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल तक वो एग्जैक्ट आंसर देगा, सिम्पसन रूल। जस्ट आपने एरर टर्म देखनी है। अगर एरर में फोर्थ डेरिवेटिव है तो पॉलिनोमियल 3 तक एग्जैक्ट आंसर देगा। क्यों देगा? क्योंकि x4 का फोर्थ, सॉरी, अगर आप 3 डिग्री तक लिखते हो पॉलिनोमियल तो उनके फोर्थ डेरिवेटिव 0 होंगे। 3 का भी होगा, 2 का भी होगा, 1 का भी। So since you have some quizzes or some MST substitute by quizzes, so इन चीजों पे ध्यान दीजिए, ठीक है, जो मैं बोलता हूँ बीच में कि डिग्री ऑफ प्रिसीजन कैसे निकालनी, क्या होता है।
यूजुअली टीचर लैब के वाइवा में भी पूछते हैं कि क्या होता है, फिर बच्चे भूल जाते हैं कि क्या था ये। सिम्पसन रूल हैज 3. So now I'll take one example. ट्राइपोजॉइडल का हमने लास्ट बार कर लिया था शायद, ट्राइपोजॉइडल का। सो आई एम टेकिंग वन एग्जांपल ऑफ सिम्पसन रूल। तो प्रॉब्लम कैसी होंगी, क्वेश्चंस इसमें आपने देखा होगा इंटरपोलेशन में जैसे थे वैसे से ही हैं। सो सब में वर्किंग प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है। तो क्या पूछेंगे आपसे, एक तो इंटीग्रल का वैल्यू पूछेगा और फिर एरर पूछेगा, दिस एरर या मैक्सिमम एरर कितना होगा, दो चीजें पूछेंगे। यही हम यही उसमें पूछते थे इंटरपोलेशन में, यही इसमें पूछना है इंटीग्रेशन में। तो क्वेश्चन है, मैं सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, 1/x वाला ही है उस टाइप का कुछ। अप्रोक्सीमेट द इंटीग्रल 0 to 0.5। ये पिछली से पिछली बार पूछा था एक बार ईएसटी में, और आसान क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं है। अप्रोक्सीमेट द इंटीग्रल यूजिंग, आगे कंपोजिट आएंगे ना, तो मैं इसको नॉन कंपोजिट कह रहा हूँ, मतलब सिंपल सिंपल सिम्पसन रूल कह लो, नॉन कंपोजिट सिम्पसन्स रूल। आगे एडिशन है इसमें, गिव ए बाउंड फॉर एरर, आल्सो गिव ए बाउंड फॉर एरर। यानी कि इसको अप्रोक्सीमेट करना है सिम्पसन रूल से, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एरर दैट यू नीड टू डिस्कस। ओके, so in over notation, in usual notation, so you have limit a 0 से लेके 0.5 तक है, ए बी। जो h होगा दैट इज b माइनस a बाई 2, इनके बीच का गैप का आधा, सो 0.5/2 यानी कि 0.25। एंड व्हाट इज एफ एक्स, जिसका इंटीग्रल करना है 2 डिवाइड बाई x माइनस 4, ये जो dx के साथ है, दिस इज एफ एक्स। और कई बार होता है कि 2 को बाहर लिख देते हैं तो बच्चे छोड़ देते हैं इसको, ये गलती नहीं करनी। dx के अलावा जो भी है दैट इज एफ एक्स। हाँ, 2 को बाहर लिख लो कोई बात नहीं, फिर लिखना चाहो एफ एक्स में ना डालो, फिर पूरे को आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आप ये भी कर सकते हो, 2 को यहाँ लिखो, एफ एक्स टेक 1/x माइनस 4, बट देन मल्टीप्लाई 2 हियर, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कांस्टेंट कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट डोंट फॉरगेट दिस 2, एक वे में जरूर लेना है, चाहे आप पहले ले लो चाहे आप बाद में कर लो। तो दो, पहले मैं आंसर निकाल रहा हूं इसका, इंटीग्रल की वैल्यू, फिर एरर निकाल लेंगे। तो इंटीग्रल कर रहे हो आप 0 से लेके 0.5 2x माइनस 4, चलो ये तो लिख लिया हमने। तो इंटीग्रल की वैल्यू को मैं लिख रहा हूं आई एस, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल बाय सिम्पसन रूल, आई एस दैट इज h/3। ये रूल था f0, x1 क्या होगा, मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट क्या होगा a और b का, यानी कि a प्लस b बाई 2 4 टाइम्स 0.25 a प्लस b बाई 2 प्लस f एट b 0.5। तो फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। सो h इज 0.25/3, f0 2 डिवाइड बाई 0 माइनस 4 प्लस 4 टाइम्स 0.25 पे वैल्यू 2 डिवाइड बाई x माइनस 4, x को 0.25 लिख दो, और फिर b पे, b इज 0.5, सो 0.5 माइनस 4। So simplify this with calculator, minus 0.267063
4 एक्सेट्रा, कुछ ये आंसर है 6349। सिंप्लीफाई कर लेना कैलकुलेटर से। ठीक है, ये तो आपका हो गया इंटीग्रल का वैल्यू। अब एरर, द एब्सोल्यूट एरर। अब एरर बाउंड निकालना है, एरर का मैक्सिमा h5/90, चाहे आप मॉड ना लगाओ तो माइनस लगा देना यहाँ पे। h5/90 f फोर्थ डेरिवेटिव एट c। ठीक है, सो फंक्शन को 4 बार डिफरेंशिएट करो। आई होप यू कैन डू। 4 बार डिफरेंशिएट करना है आपने। f4x निकालो, उसका मॉड ले लेना, ये आएगा 48 डिवाइड बाई 1/x है जस्ट। 4 डेरिवेटिव में नीचे 1/x⁵ आ जाएगा, ऊपर अकॉर्डिंगली। तो इसका मैक्सिमा निकालना है आपने, फाइंड इट्स मैक्सिमा। अब x लिखो या c लिखो, c बिलोंग्स टू 0 से लेके 0.5। आप f4c भी लिख सकते हो। तो इसका मैक्सिमा क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है, मैक्सिमा मिलेगा लोअर पॉइंट पे 0 पे। इसका मैक्सिमा निकालो, निकालोगे? सो 48 डिवाइड बाई 4⁵ 0 पे मिलेगा। x या c को 0 कर दो, तो मैक्सिमम एरर क्या होगा, सो देयरफॉर लेस देन और इक्वल टू h5/90। h मतलब 0.25 पावर 5 डिवाइड बाई 90, और फोर्थ डेरिवेटिव का मैक्सिमा क्या आ गया, 48 डिवाइड बाई 4⁵। इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लेना, 0.1234 0 और 1 लगभग आएगा ये। तो इतनी मैक्सिमम एरर होगा। ओके, सो do the two things. First, find value of the integral. This is the value of the integral, that is I by Simpson, and this is error. तो C नहीं पता तो usually we will find maximum error by finding fourth derivative maxima. तो fourth derivative निकाल लो, उसका maxima निकाल लो। 1/x है, डिक्रीज करेगा तो मैक्सिमा मिलेगा x इक्वल टू 0 पे। तो x को 0, x या c को 0 कर दो, सिंबॉलिक है। ठीक है, तो अब पहले इंटीग्रल निकालो अलग से, h/3 fa + 4 टाइम मिडल पॉइंट प्लस fb। So in that way you can apply these rules to integrate, and tomorrow we will study their composite version. Composite means that we will divide our domain into small cells and then apply these rules. So I'll stop here. Any quick query? सर आपने वो डिग्री ऑफ प्रिसिशन का कुछ एक मतलब बताया था।